बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में नगर निगम द्वारा जमा किए गए कूड़े के ढेर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये डंपिंग स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है, जहां शहर भर से कचरा लाकर रखा जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग बीती रात ही लग गई थी, लेकिन सुबह कूड़े से घना धुआं उठता देखा गया। धुएं के कारण आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है और लोगों ने आशंका जताई है कि अगर धुआं हाईवे तक पहुंचता है तो बड़ा हादसा हो सकता है। इस घटना पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और आसनसोल उत्तर से प्रत्याशी कृष्ण नंदू मुखर्जी ने प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है और नगर निगम को सही ढंग से काम करना नहीं आता। साथ ही उन्होंने टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। রাতে 10টার সময় কাল লেগেছে। আগুন হ্যাঁ, কি করে লাগলো? এটি তো জানতে পারি না। এটা তো এই প্রথমবার নয়, এরকম ডাম্পিং ইয়ার্ডে বারবার আগুন লাগছে এবং ওইখানে ওই দূষিত ধোঁয়া সব মানুষজন এখানে ভোগ করছে। কর্পোরেশন যেমন গোটা পশ্চিমবঙ্গের যে অব্যবস্থা চলছে সব জায়গায়, আসানসোল কর্পোরেশনও সেটার মধ্যে একটা, নতুন কিছু না, পুরো সরকারটাই ফেল করে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারটা একেবারে চলতেই পারছে না, সমস্ত দপ্তর ফেল করে যাচ্ছে। আসানসোল কর্পোরেশন এখন একটু এই ভোগান্তি ভুগতে হবে। এখন এই 15 বছর ধরে যেভাবে চালাচ্ছে সে তো বলবার কিছু নেই। আমরা আসানসোলের মানুষ প্রত্যেক দিন দৈনন্দিন যে পরিষেবা, নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে, এটা আমরা দেখে আসছি। এটার পরিবর্তন এই সরকারের সাথে সাথেই শেষ হবে। पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस बार 6 पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है, जबकि 3 नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। आसनसोल उत्तर से एक बार फिर मलाई घटक को टिकट दिया गया है, जिससे उनके समर्थकों की अटकलों पर विराम लग गया है। वहीं दुर्गापुर पूर्व से मंत्री प्रदीप मजूमदार को उम्मीदवार बनाया गया है। इस बार दुर्गापुर पश्चिम से कवि दत्ता और रानीगंज से कालूबुरन मंडल को नए चेहरे के तौर पर उतारा गया है। कुल्टी सीट से अभिजीत घटक को उम्मीदवार बनाया गया है, जो यहां पार्टी का बड़ा दाव माना जा रहा है। अन्य सीटों पर पांडेश्वर से नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जमुड़िया से हरेराम सिंह और बाराबरी से विधान उपाध्याय को फिर से मौका दिया गया है। आसनसोल दक्षिण से तापस बंदोपाध्याय को उम्मीदवार बनाया गया है। আমি আমার তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই, প্রণাম জানাই, ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে তিনি আবারও আমার উপর আস্থা রেখেছেন এবং আসানসোল উত্তর বিধানসভা থেকে আমাকে প্রার্থী করেছেন। খালি জেলা নয়, জেলার বাইরেও আমাকে যেতে হয়। তো তৃণমূল কংগ্রেসের যারা প্রার্থী হয়েছেন, আমাদের যারা উচ্চ নেতৃত্ব আছেন, সেখান থেকে যা নির্দেশ দেবে আমরা সেই মতোই কাজ করব। আমাকে যদি আজকে বলে পুরুলিয়া যেতে, আমি নিশ্চয়ই পুরুলিয়া যাব। আমাকে যদি বলেন বাঁকুড়া যেতে, আমি নিশ্চয়ই বাঁকুড়া যাব। আমাকে যদি বলা হয় পূর্ব বর্ধমান যেতে, সেখানেও যাব। বীরভূম যেতে বললে বীরভূম, উত্তরবঙ্গে যেতে বললে উত্তরবঙ্গেও যাব। নিজের জেলা তো আছেই। উল্টিতে আপনার ভাই অভিজিৎ ঘটকই প্রার্থী হচ্ছে, বাড়তি দায়িত্ব আপনার উপরে, কীভাবে এটাকে ম্যানেজ? দেখুন, আমাদের জেলাতে 9টা কেন্দ্র আছে। 9টা কেন্দ্রের যা দায়িত্ব, কুলটির দায়িত্ব একই। ভাই বলে তার কোনো স্পেশাল দায়িত্ব হতে পারে না। সেও একটা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, সেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আমার পাশে আসানসোল দক্ষিণে তাপসদা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, আরেকদিকে বিধান উপাধ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তো তৃণমূল কংগ্রেসের যতজন প্রার্থী হয়েছেন সবারই ক্ষেত্রে যা দায়িত্ব, কুলটির ক্ষেত্রেও সেই দায়িত্ব। এটা কি মনে করছেন জেলাতে 9 তৃণমূল এবার নেবে? এবারে যেভাবে প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে এবং এবারে যা সিচুয়েশন আমাদের জেলা, এবারে 9 হবে। এবারে বিজেপি কোনো কেন্দ্র
এই জেলার থেকে পাবে না, একটাও বিধায়ক পাবে না। পাণ্ডবেশ্বর তৃণমূলের দুর্গ। পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ উচ্ছ্বসিত। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে গোটা জেলাকে আমরা খুব খুশি। আমরা প্রত্যেকজন প্রার্থী আগামীকালই একসঙ্গে মিটিং করে আমরা পরবর্তী লড়াইয়ের রূপরেখা তৈরি করে নেব। আমাদের লক্ষ্য 9 জয়, বিজেপিকে পর্যদুস্ত করে সিপিএমকে হারিয়ে দিয়ে পাণ্ডবেশ্বর শুধু নয়, পাণ্ডবেশ্বর, বারাবণিক, কুলটি, আসানসোল নর্থ, আসানসোল সাউথ, দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম, জামুরিয়া প্রত্যেকটি সিট থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে এবার কলকাতা যাবেন। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। कुल्टी विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने इस बार बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए वरिष्ठ नेता उज्ज्वल चैटर्जी का टिकट काट दिया है। उज्ज्वल चैटर्जी 3 बार विधायक और 4 बार कुल्टी नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं। उनकी जगह पार्टी ने नए चेहरे के रूप में अभिजीत घटक को उम्मीदवार बनाया है, जो मंत्री मलाई घटक के भाई और वर्तमान में आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं। उम्मीदवारी की घोषणा के बाद अभिजीत घटक के समर्थकों में खुशी देखी गई और उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उज्ज्वल चैटर्जी का नाम सूची से हटने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि कुल्टी सीट पर ये बदलाव आगामी चुनाव में क्या असर डालता है और टीएमसी का ये दांव कितना सफल साबित होता है। देखिए, राजनीतिक जीवन में ये बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमारा जो नेत्री है ममता बनर्जी और हमारा जो नेता अभिषेक बनर्जी, उन्होंने मेरा ऊपर भरोसा किया है और मुझे ये जिम्मेदारी दिया है कि कुल्टी को फिर से जीतने के लिए। जो कुल्टी हम लोग 2021 में बहुत कम मार्जिन से नहीं जीत सके, उसको फिर से जीत के हम लोग ममता बनर्जी का हाथ में कुल्टी को सौंपना चाहेंगे, उसका कुल्टी का तरक्की के लिए, कुल्टी को आगे बढ़ाने के लिए। पहली प्राथमिकता क्या होगी?
देखिए, प्राथमिकता तो बहुत है, लेकिन हम ये जानते हैं कि कुल्टी, जिसको हम एक शिल्प नगरी कहते हैं, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन था पहले, वो वामफ्रंट का जमाना में और खास करके उसके बाद जो विधायक पिछले 5 साल से कुल्टी में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टी से जुड़ा हुआ है, उन्होंने कुल्टी को कारखाना को खोलने के लिए कोई काम नहीं किया है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि कुल्टी में जो कारखाना था वो चालू हो और नया कारखाना है, क्योंकि कुल्टी का जनता को, वहाँ का जो नौजवान है उनको नौकरी का ज़रूरत है। हम लोग चाहेंगे कि कुल्टी का जो नौजवान है उसको कुल्टी में ही नौकरी मिले और हर घर में कम से कम जो नौजवान है सबको नौकरी का ज़रूरत होता है और सबको अगर अपने इलाका में नौकरी मिल जाएगा उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, इस बार युवा को सामने भरोसा रखा है, तो क्या करें? देखिए, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। जो सीनियर है वो अपना ये करते हैं, उनको फिर जूनियर को जगह देना पड़ता है। तो इसके लिए हम देखे हैं कि हमारा जो कैंडिडेट लिस्ट है उसमें सीनियर भी है, जूनियर भी है। सीनियर का एक्सपीरियंस ज़रूरत होता है, तजुर्बा ज़रूरत होता है, और जूनियर का जो यंग है उसका हौसला, उसका लड़ाई करने का जो मन उसको ज़रूरी होता है। तो दोनों का मिलावट लेके ही हम लोग चलेंगे। हम लोग, हमारे जो लीडर कुल्टी में है, जिनको बहुत तजुर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है, और फिर नौजवान भी है जो लड़ाई करने के लिए तैयार है, हम लोग सभी मिलके कुल्टी को फिर से जीतेंगे। बीजेपी की सीट है कुल्टी, ये बीजेपी कैंडिडेट जो है उसको आप कितना फैक्टर मानते हैं? देखिए, हम जितना जानते हैं कि बीजेपी का जो विधायक कुल्टी में था, उनका कुल्टी से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुल्टी का तरक्की के लिए कभी सोचा नहीं था। उनको जो विधायक फंड का कोटा का पैसा मिलता है, उसको भी वो खर्चा नहीं किया कुल्टी का तरक्की के लिए। और विधानसभा में हम लोग कभी उनको नहीं देखे हैं कि कुल्टी का लिए कोई सवाल करने के लिए, कुल्टी का तरक्की का कोई डिमांड रखने के लिए। तो जब ऐसा एक विधायक जो कुल्टी का बारे में सोचता नहीं है, जो कुल्टी का लोगों के लिए नहीं सोचता है, जो कुल्टी का तरक्की के लिए नहीं सोचता है, तो हम यही सोचेंगे कुल्टी में जो जनता है वो सोचेंगे कि ऐसा एक किसी को प्रतिनिधि करके भेजे जो कुल्टी का बारे में सोचेगा, कुल्टी का लोगों के बारे में सोचेगा और कुल्टी का तरक्की के बारे में सोचेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पांडेश्वर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी ने चुनावी रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के सरपी कोलेरी स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने घोषणा पत्र के आधार पर ही जनता के बीच जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का मुख्य फोकस राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता में शामिल है। टीएमसी पर निशाना साधते हुए तिवारी ने आरोप लगाया कि पांडेश्वर क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस स्थिति को बदलकर लोगों को सुरक्षित और विकासशील वातावरण देगी। उनके इस बयान के बाद पांडेश्वर में चुनावी मुकाबला और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि मतदाता इन मुद्दों पर कितना भरोसा जताते हैं। नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ভালোবাসা পেতে গেলে, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আরও যা যা আছে সেটার অংশীদার হতে গেলে জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে তো গালাগালি দিতেই হবে। কিন্তু আমি এটা ভালো, দধিচি বলে ঋষির নাম শুনেছেন তো, মারা যাওয়ার পর তার অস্থিও কাজে লেগেছিল। তো এটা ভালো লাগছে যে আমাদের দলের ছেলেরা আমার ভালোবাসা পাচ্ছে, আমাদের দলের ছেলেদের আমি কাজে লাগছি। যারা আমাদেরকে দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে তারাও গাল দিয়ে তারা জীবনে এগোচ্ছে, তো সেটা ভালো লাগছে। ঠিক আছে, কোনো না কোনোভাবে আমি ওদের কাজে লাগছি। সে টাকা কোথায় গেল তার তদন্ত হবে। গরিব মানুষের এখনো আমরা দেখছি কাঁচা বাড়ি আছে, মাটির ঘরে তারা বসবাস করছে। প্রত্যেক মানুষের বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য দিল্লি থেকে যে টাকা এসেছিল সে টাকা কোথায় গেল কেউ হিসাব পাচ্ছে না। এখনো মানুষের বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছায়নি কেন, সবটাই তদন্ত হবে এবং সমস্ত সুযোগ সুবিধা মানুষকে দেওয়া হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে যে বেসরকারি কলকারখানা এখানে আছে, যেমন বিভিন্ন প্যাচ আছে, সেখানে দেখবেন কেন্দ্রীয় সরকার একটা হাই পাওয়ার কমিটি করেছে কোল ইন্ডিয়াতে,
যে হাই পাওয়ার রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী এক একজন ওয়ার্কারের 8 ঘন্টার বেশি কাজ করা উচিত না, এবং এক একজনের 35,000-40,000 টাকা বেতন পাওয়া উচিত। তারা কেউ 8,000-10,000 টাকা তাদেরকে রাখা হয়েছে। কাজের কোনো নিশ্চয়তা নেই, জোর করে তাদেরকে কেউ প্রতিবাদ করলে তাদেরকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই না, ইসিএল এর ঘরে যারা বসবাস করছেন বা ইসিএল এর সম্পত্তিতে যারা বসবাস করছেন, দুর্গাপুরে যেভাবে ডিএসপির সম্পত্তি লিজ দিয়ে মানুষকে দেওয়া হয়েছে, এখানেও জয়লাভ করার পর পাণ্ডবেশ্বরে একটাও ইসিএল এর ঘর থেকে মানুষকে আমরা বেরোতে দেবো না। যারা এখানে বসবাস করছেন, ইসিএলকে আমরা বাধ্য করব ওই ঘরগুলো খুব কম পয়সায় লিজ হিসাবে যে ব্যক্তিরা সেটা অকুপাই করে আছেন তাদেরকে দিতে আমরা বাধ্য করব। এটা এক্সট্রা কিছু কয়েকটা জিনিস বললাম যেটা আমরা করব। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে না, জোর করে তৃণমূল কংগ্রেস নিজের সঙ্গে রেখেছিল। এবং আমি বলি যে 16 থেকে কেন বলছে, তাহলে 11 থেকে বলুন। 11তে এখান থেকে সিপিএম চলে যাওয়ার পর থেকে তো নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এখানে ক্ষমতায় আছেন। জেলা পরিষদ কার ক্ষমতায় ছিল? নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। পঞ্চায়েত সমিতি কে দেখতো? উনি দেখতেন। 11 থেকে তো উনি ক্ষমতায় আছেন। উনি তো, আমি তো পার্ট টাইম বিধায়ক ছিলাম, আমি তো আসানসোলে মেয়র ছিলাম, পার্ট টাইম বিধায়ক হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। যেহেতু ওনার ব্যাগে আর্মস পাওয়া গেছিল, ওনাকে সেবার টিকিট দেওয়া যায়নি, সে কারণে আমাকে পার্ট টাইম বিধায়ক হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। এবং আমি যখন এলাম তখন আগে থেকে ব্লক প্রেসিডেন্ট ছিল, আগে থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিল, আগে থেকে পঞ্চায়েত প্রধান ছিল, সবটা আগে থেকে রেডি ছিল। তাদেরকে নিয়ে আমাকে কাজ করতে হলো।